عمران خان صاحب کو تقریباً 4 نومبر سے اب تک جو ہے وہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. نہ ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ وکلاء کی، نہ پارٹی لیڈرشپ کی، نہ ڈاکٹرز کی، اور ان کو مکمل جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھیجا گیا ہے. پرسوں ایک تشویشناک خبر باہر آئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر. اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جیل جا کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بہنوں میں سے کسی کو بھی صرف ان کو کہا کہ 2 منٹ ملنے دے تاکہ وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب سے صرف 2 منٹ کے لیے ملے اور ان کی صحت دریافت کرے اور باہر آ جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہاں ساری رات بٹانے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا گیا. صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تاکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے اس سارے قصے کا بتائے، لیکن انہوں نے بھی ملاقات سے انکار کیا. بہرحال جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین. آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو NFC کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے. جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بار بار بتایا ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع جن کو 2018 میں انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا لیکن فائنینشلی ان کو ابھی تک جو ہے شامل نہیں کیا گیا، جو ہمارا NFC میں شیئر بنتا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے 2018 سے لے کر 2025 تک وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا جو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ جو NFC کا شیئر ہے وہ تمام 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. چونکہ قبائلی اضلاع فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیے گئے اور وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ آدھا شامل ہے اور آدھا شامل نہیں ہے. ابھی تک جو ہماری اسٹیمیٹ ہے NFC کی مد میں ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے. صرف یہ NFC میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. باقی جو NHP ہے یا قبائلی اضلاع کے ساتھ 3% ڈویزبل پول میں 10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ رقم اس سے الگ ہے. اس NFC کے حوالے سے کل بروز پیر تمام یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد ہوں گے تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے طلبہ اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے NFC پر. نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اس NFC پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے اس پریس کانفرنس میں کیونکہ یہ آپ سب کا بھی حق، آپ سب کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ صرف صوبائی حکومت یا پروونشل اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری تمام صحافی برادری کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھا ہے. جو احتجاج ہے پرامن احتجاج وہ انصاف کے حصول کے لیے، وہ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد ایک سائڈ پر رکھنی ہے، لیکن یہ جو NFC میں ہمارا شیئر ہے یہ ہم سب کا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اپنی آواز مشترکہ اٹھانی ہے. آپ نے بھی اٹھانی ہے، میں نے بھی اٹھانی ہے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے ڈاکٹرز نے،
हमारे मजहबी जमातों ने और तमाम मकतबा फिक्र के लोगों ने उठानी है वो आवाज, और आप सब ने जो है अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इस NFC अवार्ड पर रखना है। ये तो साफ बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज तसादुम की तरफ नहीं जाना, और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। सबसे पहले बात के एहतजाज, आप सही कह रहे हैं कि वो पार्टी तंजीम का काम है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने बहैसियत वर्कर उनका मुकम्मल साथ देना है। हमारी जो सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बहैसियत कारकुन उनका साथ देना है, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी। जो परसों का सिट इन था, धरना था पुरमन सुबह तक अडियाला जेल के सामने, वो मेरा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपना फैसला था, क्योंकि ये एक वजीर आला के साथ नाइंसाफी थी, इम्तियाजी सलूक था, क्योंकि इससे पहले आप जिस तरह आपको पता है कि बाकी वजीर आला उनको पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज इधर से उधर लेकर जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का, आपके वजीर आला का, आप सबके वजीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। तो ये इम्तियाजी सलूक जो है हो रहा है, और मुझे बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरमन एहतजाज, जो हमें आईन और कानून इजाजत देता है, वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरमन मज़ाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और जख्मी करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हो चुकी है एक दफा। कल उसके बारे में जो है अवार्ड के लाएअमल के बारे में कल हमारी तफसीलन मुलाकात एक दफा फिर हो चुकी है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, और कल जो है असेंबली सेशन में इस पर इंशाल्लाह बहस भी होगी। उसके बाद जो है असेंबली को इस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और तमाम मेंबर्स, पूरी असेंबली को इस पर ब्रीफिंग भी देगी। और हमने कोशिश करनी है कि हमने सिर्फ सूबाई हुकूमत के मेंबर्स को या असेंबली के मेंबर्स को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के हर नौजवान को इसके बारे में बताना है, और उनको कहना है कि ये आप लोगों का हक है, और आप लोगों को आपका आईनी और कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। उनका जो तंजीम का फैसला है अभी तक जो है वो सवाबी का है, और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे, वहां पर वर्कर नहीं जाएगा, वहां पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएगा। हम बिल्कुल आधा खैबर पख्तूनख्वा नहीं कोए हैं, और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है एक बंदे के हाथ में गए, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस हो रही है, तो डिलीवरी हो रही है, तो परफॉर्मेंस हो रही है, तो तीसरी दफा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। यह गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहां पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही या हम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो इश्यूज मैंने तकरीबन 45 दिनों में उठाए हैं, जो हमारा CRBC है, जो हमारा कबायली अजला का शेयर है 3% डिविजिबल पूल में, इसके अलावा जो हमारा NHP है, ये तमाम चीजें हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम इतना परफॉर्म कर पाए हैं कि तीसरी दफा हुकूमत में। आप जरा सोचें कि ये 3000 अरब रुपए से ज्यादा जो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और हमें नहीं दिए जा रहे, लेकिन 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो फेडरल हुकूमत कर रही है, जिसका IMF गवाही भी दे रहा है और उनका चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो अगर गवर्नेंस की या जो है परफॉर्मेंस की बारे में किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5300 अरब रुपए का करप्शन भी कर चुके हैं। तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है, तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो हमारे तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोग
नौजवान जो इस पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है। इसलिए लोग जो हैं हमें बार बार वोट भी दे रहे हैं और इमरान खान पर एतमाद का इज़हार मंगल को इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं बार बार जो है वाज़ा कर चुका हूं। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हल हम बता रहे हैं वफाकी हुकूमत को, तो हम ये समझते हैं कि ये इससे अमन बहाल होगा भी और ये बहाल रख पाएगी भी। हमने ये देखा है कि इससे पहले जो बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत हुए हैं या मंसूबे हम पर मुसल्लत हुए हैं, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा ने और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा नुकसान किया है। हम जो हल बता रहे हैं, अगर इस हल पर हमारी वफाकी हुकूमत गई तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस अमन को बहाल भी कर पाएंगे और रख भी पाएंगे। क्योंकि 2018 में जब दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान हुआ तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठकर एक देर पा अमन के लिए और हमेशा अमन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद हो। साहब ने तो डिसऑन किया है उस डॉक्यूमेंट और उसमें भी FIA भी गए। अच्छा, सबसे पहली बात तो तिरा में जो हमारी खानदानी जमीन है उसके अलावा मेरी कोई जाती जमीन नहीं है। पहली बात, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है। तमाम लोगों को पता है कि जो बात कर रहा है वो कितना सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं इसलिए इसमें नहीं जाता क्योंकि इनके इंटेंशन जो है वो हमेशा से नेगेटिव ही रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने काम के साथ काम रखें। जब ये अपने काम के साथ काम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं तो ये भी मशवरा देता हूं कि एक हफ्ते के लिए मैं शफी जान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी एक ट्यूशन क्लासेस ले लें ताकि उनको बात करने का तरीका आ जाए। तिरा में जो हमारी खानदानी जमीन है उसके अलावा मेरी कोई जाती जमीन नहीं है। पहली बात, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है। तमाम लोगों को पता है कि जो बात कर रहा है वो कितना सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं इसलिए इसमें नहीं जाता क्योंकि इनके इंटेंशन जो है वो हमेशा से नेगेटिव ही रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने काम के साथ काम रखें। जब ये अपने काम के साथ काम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं तो ये भी मशवरा देता हूं कि एक हफ्ते के लिए मैं शफी जान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी एक ट्यूशन क्लासेस ले लें ताकि उनको बात करने का तरीका आ जाए।